السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر رونالڈ روز نے بتایا کہ ضلع میں صبح 6 بجے سے جمعے کی صبح 6 بجے تک مختلف انفورسمنٹ ٹیموں کے ذریعے 64,29,900 روپے نقد، 14,165 روپے مالیت کا دیگر سامان اور 97.97 لیٹر شراب ضبط کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقدی اور دیگر اشیاء سے متعلق 10 شکایات کی چھانبین کی گئی اور انہیں حل کیا گیا اور 4 FIR بھی درج کی گئی۔ 42 لائسنس یافتہ اسلحہ جمع کرائے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ضلع میں اب تک 5,95,91,870 روپے نقدی اور 1,72,60,953 روپے مالیت کی دیگر اشیاء ضبط کر کی گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے وضاحت کی ہے کہ 19,277.78 لیٹر شراب ضبط کی گئی ہے اور 136 مقدمات درج کی گئی ہیں اور 133 افراد کو گرفتار کیا گیا اور 2,366 لائسنس یافتہ اسلحہ جمع کرائے گئے۔ بابو جگجیون رام کی 116ویں یوم پیدائش کی تقریبات جمعے کو GHMC ہیڈ کوارٹر میں شاندار طریقے سے منعقد کی گئی۔ اس موقع پر کئی افسران نے بابو جگجیون رام کی تصویر پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایڈیشنل کمشنر جیل شیو کمار نائیڈو، ویدیارٹ اسٹیٹس ایڈمن نلنی پدماوتی، یادگری راؤ، اسپورٹس UCD چندرکانت ریڈی، اکاؤنٹ ایگزامینر وینکٹیشور ریڈی، ڈائریکٹر سنواس راؤ، CPRO محمد مرتضیٰ اور دیگر اس موقع پر موجود رہے جنہوں نے پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر بابو جگجیون رام کے ملک کے لیے خدمات اور ایک سماجی مسئلہ کے طور پر تعریف کی گئی۔ بابو جگجیون رام کی یوم پیدائش کے موقع پر BRS کے سینئر لیڈر ڈاکٹر ایرولا سنواس نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ بھون حیدرآباد میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ایرولا سنواس نے خطاب بھی کیا اور کہا کہ اگر BRS حکومت دلتوں کو آسمان پر اٹھا لے گی، کانگریس حکومت توہین کر رہی۔ اگر بابو جگجیون رام نے کانگریس کے دور حکومت میں دلتوں کی بہتری کے لیے کام کیا تو آج کی کانگریس حکومت یہاں پر انہیں دلتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ راجیہ سبھا کے اراکین نے سابق نائب وزیر اعظم بابو جگجیون رام کو ان کی 116ویں یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صبح لوک سبھا میں تلنگانہ بھون کھمم میں میئر نیرجا نے دیگر معززین کے ساتھ جگجیون رام کی تصویر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر BRS قائدین سیلم شیٹی، ویربھدرم، پگڈالا، ناگراجو اور دیگر نے بابو جگجیون رام امر رہے کے نعرے لگائے اور کہا کہ ہم جگجیون رام کے عزائم کو حاصل کریں گے۔ MP واویرا راجو اور سیتارکارم واویرا راجو روی چندر کو متفقہ طور پر راجیہ سبھا کے لیے دوبارہ منتخب ہونے اور کھمم تلنگانہ بھون میں حلف لینے کے بعد پارٹی قائدین نے شال سے نوازا۔ سنگاریڈی حلقے میں کانگریس ورکرز میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں PCC کے ورکنگ صدر جگاریڈی نے کہا کہ عوامی مسائل کو جلد از جلد حل کریں گے۔ انتخابی ضابطہ ختم ہونے کے بعد ترقیاتی کام ہوتے ہیں، ہم ہر وزارت کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ سنگاریڈی اور سداشیو پیٹ میں اسپتالوں کی تعمیر ہوگی۔ CM ریونت ریڈی سے بات کی جا رہی ہے اور سنگاریڈی کو زیادہ سے زیادہ فنڈز لائیں گے۔ ہم نے سداشیو پیٹ میں 4,000 لوگوں کو مکانات دیے ہیں اور کہا کہ ہم تمام منڈلوں میں مستحق لوگوں کو مکان فراہم کریں گے۔ ہماری حکومت 5 سال چلے گی۔ نارا بھونیشوری کی تقریر کا اشارہ۔ نندیال حلقے کے نندیال ٹاؤن کے وارڈ 13 میں کارکن ویملا پاڈو گرو راج کے خاندان سے ملنے کے بعد YCP کے دور حکومت میں TDP کارکنوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ناقابل فراموش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام قربانیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں تمام TDP کارکنوں اور تمام کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جو پیچھے ہٹے بغیر آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ تیلگو دیشم پارٹی کے لیڈروں کو کتنے ہی طریقوں سے ہراساں کر رہے۔ نارا بھونیشوری کی TDP کارکن کے اہل خانہ سے تعزیت۔ بھونیشوری نے وارڈ 13 نندیال ٹاؤن نندیال حلقے میں کارکن ویملا پاڈو گرو راج کے خاندان سے ملاقات کی۔ گرو راج جس کی موت چندر بابو کی غیر قانونی گرفتاری کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی۔ نارا بھونیشوری نے گرو راج کے خاندان کے افراد کی خیریت دریافت کی۔ بھونیشوری نے گرو راج کی تصویر کو خراج عقیدت پیش کیا اور بھونیشوری جنہوں نے گرو راج کے خاندان کو یقین دلایا اور تسلی دی کہ پارٹی ان کے ساتھ رہے گی۔ مادگا ڈنڈورا تحریک کے 10 اضلاع سے تقریباً 100 مادگا قائدین ستیش مادگا اور چنتا سوامی کی قیادت میں کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے۔
पार्टी इंचार्ज दीपदास मुंशी सीएम रेवंत रेड्डी के घर में खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में मदऊ किया। मल्लू रवि और चंद्रशेखर ने भी अपने आप को खंडवा पहनाकर मादिगा के कायदीन को मदऊ किया और उनका खैर मकदम किया। बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सबके साथ अपने घर पर डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई। इस मौके पर सतीश मादिगा और चिंता स्वामी ने कहा है कि वो पूरे तेलंगाना में मादिगा तबके की हिमायत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जमा करेंगे और पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। तामीराती कारकुन हादसाती तौर पर इमारत के ऊपर से गिरने से जाँ बहक हो गया। ये वाकया चंदानगर पुलिस स्टेशन के तहत गुलमोहर पार्क में जेर तामीर कंडियार कंस्ट्रक्शन कंपनी में पेश आया। मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाला केरल मियाँ 34 साल जो रोजी कमाने के लिए शहर आया था और कंडेर के अपार्टमेंट में तामीराती मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। केरल मियाँ 34 साल काम के दौरान गलती से इमारत की 30वीं मंजिल से गिर गया। शदीद खून बहने की वजह से उसकी मौत मौके पर ही वाक़ हो गई। चंदानगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही। मजदूरों का इल्जाम है कि तामीराती कंपनी अपार्टमेंट में काम करने वाले मजदूरों को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही। बराबर है सर, आदमी लोग को उधर क्या क्या गुम हो जाएगा तो फिर निजामाबाद देही कैंप ऑफिस में बड़ी तादाद में बीजेपी और टीआरएस कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी देही, भूपति रेड्डी, मंडावा वेंकटेश्वर राव और एरिकला नरसा रेड्डी, गुडुगु गंगाधर रत्नाकर, मुप्पा गंगा रेड्डी और शेखर गौड़ ताराचंद और मंडल सुदूर कांग्रेस कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में सुबह वॉकिंग करते हुए बीआरएस पार्टी के एमपी उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन ने सवेरे उठने पर एक अच्छी बात है कहा और आवाम को बताया कि एमपी उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शहर निजामाबाद की आवाम को वॉकिंग करते हुए सबसे मुलाकात की और सुबह की वॉकिंग पर जोर दिया। मुल्क के साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम के यौम पैदाइश पर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मनाला मोहन रेड्डी, जिले कांग्रेस कमेटी के सदर और स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान की क़यादत में उनकी तस्वीर को खराज अक़ीदत पेश किया। सिटी सदर केशावेनु और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। बादशाह इस मौके पर मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि बाबू जगजीवन राम बदुगु एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमेशा कमजोर तबकात के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जदोजहद की। वो एक अजीम इंसान थे जिन्होंने जिंदगी भर पसमानदा लोगों के हुकूक के लिए जदोजहद की और कामयाबी हासिल की। పోరాటం చేసి వాళ్ళ హక్కులను సాధించడంలో సఫలీకృతమైనటువంటి వ్యక్తులు జగజీవన్ రామ్ గారు. ఈ దేశంలో చాలా విషయాల్లో ఆ రోజు అంటరానితనంలో దేశంలో ప్రవహిస్తున్న సమయంలో వాళ్ళన్నిటి పక్షాన పోరాటం చేసి ఈ దేశంలో అనగానే వర్గాలు కూడా ఉన్నతమైన పదవుల్లో ఉండగలరని నిరూపించిన వ్యక్తులలో జగజీవన్ రావు మొట్టమొదటివారు. ఈ రోజు మనం అందరం కూడా అలాంటి మహానుభావుల యొక్క ఆశయాలను ఆలోచనలను మనం వాటిని అడాప్ట్ చేసుకొని ముందుకెళ్లాల్సిన రోజులు ఈరోజు వచ్చినాయి. ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ దేశంలో పాలిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఎక్కడైతే కుల నిర్మాణం కోసం పోరాటం చేసినటువంటి ఇటువంటి నాయకులు ఉన్నారో తిరిగి ఇలా కులాల పేరున మతాల పేరున ఈ దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళ ఆలోచనలను వీళ్ళ ఆశయాలను మనం అందిపుచ్చుకొని ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఆ మహనీయుడి యొక్క జయంతి సందర్భంగా అందరం కూడా ఘనమైన నివాళులు అర్పించి, ఎందుకంటే
వారు మరణించిన తర్వాత కూడా జనంలో జీవించిన వ్యక్తులలో ఆయన ఒకరు. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉందనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి ఘనంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన, జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన, నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. शकील एडवोकेट सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की सरपरस्ती और मीर हामिद अली इंजीनियर सदर मुस्लिम यूथ लीग की निगरानी में महावीर अस्पताल के करीब खैरताबाद के इलाके में 200 से ज्यादा इफ्तार बॉक्स तकसीम किए गए। नायब सदूर नुमान रहमान, खदीरुद्दीन अहमद, सेक्रेटरी सैयद सैफ और मोहम्मद अशरफ इस दौरान मौजूद रहे। मुस्लिम यूथ लीग ने यकम रमजान से राशन किट्स और इफ्तार बॉक्स तकसीम किए हैं और आज इफ्तार बॉक्स ड्राइव का 10वां दिन था। हैदराबाद के अंबरपेट, हिमायत नगर, टोली चौकी, बहादुरपुरा और दूध बौली और दीगर डिवीजनों में भी राशन किट्स और इफ्तार बॉक्स तकसीम किए गए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पे खैरताबाद में हमारे IUML के जो सदर है जनाब शकील एडवोकेट साहब, उनके हिदायत पर और MYL के जो प्रेसिडेंट है तेलंगाना के मीर हामिद अली साहब, उनके ज़ेर निगरानी आज यहाँ पे हमारा इफ़्तार बॉक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है खैरताबाद पे। इससे पहले भी हमने 15 रमज़ान के आसपास में एक ये किया था, राशन किट का ड्राइव किया था अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरपुर एरिया में, और बहुत अच्छा रहा, सक्सेस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और अंबरपेट में किया था अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे भी बहुत सक्सेस रहा। और आज पार्टी के माशाल्लाह सारे कारकुन मौजूद हैं यहाँ पे। मैं वाइस प्रेसिडेंट MYL का नुमान रहमान, और हमारे साथ और एक वाइस प्रेसिडेंट है खदीर साहब, और जनरल सेक्रेटरी हमारे सैफ और अशरफ साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुज़क्किर भी है जो एक्टिव वर्कर है। ये बहुत अच्छा एक इक़दाम हमने लिया है, और मैं यही बोलूँगा कि सारे नौजवानों को कि अल्हम्दुलिल्लाह आइए हमारे साथ जुड़िए, और बिला मज़हब और मिलत हमने ये माशाल्लाह आज ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया है इसका करीब 200 है, 200 के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी फ़िलवक्त तो पॉकेट से ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश है जिसको हम कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें इसमें, ख़ास करके नौजवान जो हजरात हैं उनको मैं गुजारिश करूँगा आपके चैनल के तरीक़े से कि आइए हमारे साथ जुड़िए और अल्हम्दुलिल्लाह इस अच्छे काम में, नेक काम में हमारा साथ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कलाबुर्गी लोकसभा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राधा कृष्णा का प्रचार सभा में देहात में यूथ कांग्रेस की जानिब से इस्तकबाल किया गया, जिसमें साबिका वजीर बाबुराव चिंचनसूर ने बात करते हुए कहा है कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने गरीब आवाम के लिए 5 स्कीम्स देकर गरीब आवाम की मदद की है और उन्हें मददगार भी बनाई है। कलाबुर्गी लोकसभा से राधा कृष्णा जो एक मजबूत कैंडिडेट हैं और सीधे साधे इंसान भी हैं, इस बार तमाम से ज्यादा वोट देकर राधा कृष्णा को कामयाब बनाने यूथ कांग्रेस मिनॉरिटी प्रेसिडेंट मंसूर अहमद ने गुजारिश की है और बात करते हुए कहा है कि हमारे देहात में जो भी तरक्की के काम हुए हैं, स्कूल, हॉस्टल्स जैसे और दूसरे भी तरक्याती के काम कांग्रेस पार्टी ने ही किए हैं और शादी के ये फंक्शन हॉल्स भी सैंक्शन हुए हैं। इसके काम जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो कर दिखाती है। इस बार देहात से राधा जी को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर जिताने की उन्होंने गुजारिश की है। इस मौके पर जिले प्रेसिडेंट बासर रेड्डी अनपुर, ब्लॉक प्रेसिडेंट कृष्णा चपेटला, साई बन्ना बोरबंडा, SK मोइनुद्दीन, शरणप्पा मंगनेर और संजीव कुमार चंद्रपुर और कांग्रेस पार्टी के तमाम कारकुन मौजूद थे। अहमद नेहदी की ये रिपोर्ट। आज हम बड़े प्राउड साथ बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो बात करती है वो करके दिखाती है। इसी तरह से आज हमारे RK साहब ने हमारे गांव के लिए शादी हाल भी सैंक्शन करके दिए हैं। हम RK साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि RK साहब ये इलेक्शन खत्म होते ही काम भी शुरू होने वाला है उसका, और उसकी पूरी RK साहब का हमें और एक बार दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमें बहुत बैकवर्ड भी हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा कन्नड़ से ज्यादा तेलुगु करते हैं, हम बहुत बैकवर्ड हैं सर। इसीलिए कि हमारे पास थोड़ा सा एजुकेशन के लिए भी हमारे लिए थोड़ा तवज्जो है। RK साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आज हमारे पास पढ़ाई की सहूलत या कॉलेज थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम RK साहब वो भी हमारे गुरबिट काल के लिए कुछ
अच्छा करते हुए हम तालीम में बहुत पीछे हैं साहब। हमारे पास बहुत गिने चुने 10 से 12 ग्रेजुएट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बैकवर्ड होने की वजह से हम सही कन्नड़ा बोलने नहीं आ रही, न कुछ स्कीम समझ में आ रहा है, इसीलिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा तालीम में फोकस करें। इसी से हम आपका और बार शुक्र करते हुए और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब लोग कांग्रेस वोट दें और आर के साहब को बहुत ज्यादा से ज्यादा वोट से इस बार हम जिताएंगे। ये बात हम आर के साहब को भरोसा दिलाकर बुझाना है कि और हमारे ईदगाह के डेवलपमेंट के लिए भी आर के साहब की तरफ से 5 लाख रुपए हमारे दिए हैं। ये आर के साहब का हमारे पर शुक्रगुजार है, आर के साहब का बहुत शुक्रिया करते हैं कि माइनॉरिटी के लिए कोई भी चाहो आर के साहब हर काम के लिए करते हैं। मैं कई बार आर के साहब को बेंगलुरु में मिला, आर के साहब मुझे आइए बैठिए, कहाँ से आए, क्या है, क्या गाँव कैसे है, क्या सहूलत है, सब अच्छी तरह से पूछते हैं। इतने अच्छे आदमी को हम बहुत से बहुत वोट देकर हम यही है कि उनको ताकतवर बनाए और हम उनको उनसे काम लेने की कोई करें। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मैं इस बार इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।